میرے والدین کو یہ حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے روشن چراغ رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اب ان کا بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ چراغ نے گھر میں اجالے کی بجائے گھپ اندھیرا کر دیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا، ابا بھی اس کو کچھ نہ کہتے تھے۔ وہ بچپن سے بہت ضدی ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے نکل بھاگا۔ محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریپ کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہوئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور چراغ کو سخت سست نہ کہنے دیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتی کہ خدا نے منتوں مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی عاقبت نا اندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ چراغ 17 برس کا تھا جب والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ چراغ کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا۔ میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان ہو رہی تھی، کیا بیت گئی ہے جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کسی نے در کھٹکھٹایا۔ یہ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابو مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، وہ کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور چراغ کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، تم صابر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا سکون تہ و بالا ہو گیا۔ سر پر برقع ڈال کر روتی دھوتی صابر صاحب کے گھر دوڑ پڑی۔ شومئی قسمت کہ وہ کسی کام سے لاہور گئے ہوئے تھے۔ یہ آنسو پہنچتی گھر آ گئیں۔ 3 روز بعد صابر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکے کو بھیج کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لو۔ اماں پھر بھاگی گئیں۔ صابر صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کٹ چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، لیکن پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی ان کے کھاتے میں تھیں۔ دیگر کئی غلط سلط کاموں میں یہ لوگ ملوث تھے۔ صابر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ ابھی باپ کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ افتاد بڑھ گئی۔ اس کے بعد حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ گھر میں ایک ہی کمانے والا تھا۔ میں نے FA کر لیا۔ امی نے صابر صاحب کی بیوی سے کہا، بیٹا تو جیل چلا گیا ہے، سنوبر کی کہیں نوکری لگوا دیں تو ہمارا چولہا جلتا رہے گا۔ ان بیچاری نے شوہر کی منت سماجت کی اور انہوں نے اپنے ایک دوست شرافت صاحب کے نام سفارشی رکا لکھ کر مجھے دے دیا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے۔ یہ میرے دوست ہیں، امید ہے کہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں نے رکا لا کر مجھے دیا اور اگلے دن صبح 8 بجے میں برقع اوڑھ کر اسناد بیگ میں رکھ کر گھر سے نکل پڑی۔ 9 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے باہر پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپڑاسی کے ساتھ اشرف صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ان کے کمرے میں پہنچی۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، بیٹھ جائیے۔ ان کے سامنے پڑی کرسی پر میں سہمی سہمی سی بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری نگاہ ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تم کو حمید صاحب کام سمجھا دیں گے، چاہو تو آج سے جوائن کر لو۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران تھی۔ حمید صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا کہ فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا، چاہو تو آج 2 بجے جا سکتی ہو، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینی ہوگی۔ جی سر، میں نے 2 الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد پیون میرے لیے چائے لے کر آ گیا۔ کہنے لگا، میرا نام زمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ صاحب بہت اچھے اور مہربان آدمی ہیں، لیکن لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد حمید صاحب میرے کمرے میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا۔ میرے حوالے کیا اور بولے، پڑھ کر 2 بجے تک بھجوا دیں۔ میں نے سرسری سی نظر لیٹر پر ڈالی۔ تنخواہ توقع سے بڑھ کر تھی۔ میں نے اسی وقت سائن کر دیے۔ میں بہت خوش گھر آئی۔ امی کو فکر مند پایا، بولی، صبح کی کئی دوپہر کو آ رہی ہو، اتنی دیر کیوں کر دی؟
अम्मी मुझे मुलाजमत मिल गई है, शुक्र है खुदा का, भटकना नहीं पड़ा। वो पूरे जज्बात से मैंने उनके गले में बाहें डाल दी। वो खुश थीं, मगर मैंने महसूस किया कि उनकी इस खुशी में भी एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। घर में हम सिर्फ ख्वातीन थीं। ले दे के एक साबिर साहब थे जो माह 2 माह बाद चिराग से मुलाकात के लिए कभी अपने ड्राइवर या किसी एहलकार को भेज दिया करते थे। खुद वो बहुत कम जाते थे। अलबत्ता जेलर से फ़ोन पर चिराग के बारे में राब्ते में रहते थे। मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। कंपनी के मालिक की अनायतें देखकर मैं हैरान हो गई। मैं सोचती थी कि क्या मालिक इस कदर मेहरबान और अच्छे हो सकते हैं। एक रोज़ वो ऑफिस मुआयने पर आए। मैं काम में गुम थी। 2 मिनट कमरे में ठहरे और चले गए। उनके साथ हमीद साहब भी थे। वापस जाने के बाद उन्होंने मुझे बुलवाया। मैं समझी मुझसे कुछ गलती हो गई है। डरते डरते उनके सामने पेश हो गई। तन्हा बैठे थे। पूछा, मिस सनोबर, काम मुश्किल तो नहीं है? मैंने कहा, जी नहीं सर, काम आसान है। कहने लगे, दरअसल साबिर मेरा अच्छा दोस्त है और मैंने उसकी सिफारिश पर तुम्हें रखा है, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। फ़िलहाल ये काम दिया है, बाद में कोई दूसरा काम दे दूँगा ताकि तुम्हारी तनख्वाह में इजाफा हो जाए। मुझे लगा कि वो तसल्ली दे रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैंने उनकी बातों को शफ़क़त पर महमूल किया। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया। कहने लगे, मिस सनोबर, मैंने आपके लिए ज़्यादा बेहतर पोस्ट निकाल ली है। अपने कमरे से मुल्हिका हिस्से की जानिब इशारा किया। आज से आप यहाँ बैठेंगी और हमीद साहब आपको काम सिखाएंगे। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। मुझे उनकी इनायत पसंद न आई। सोचा, यहाँ हर वक्त उनकी नज़रों के सामने रहूँगी। बेशक दरमियान में शीशे लगे थे, लेकिन इस तरह वो जब चाहते मुझे देख सकते थे। मैंने खुद को बहुत बेआराम महसूस किया, मगर दिल की कैफियत को जाहिर न होने दिया कि हर हाल में नौकरी करनी थी। 3 हफ्ते तक सिवाय 2-4 खतूत नकल करने के कोई काम न लिया गया। हमीद साहब मुझे कारोबारी ख़त किताबत सिखाने लगे। एक रोज़ अशरफ साहब अपना नया प्रोजेक्ट दिखाने के बहाने मुझे अपने घर ले गए। मिस सनोबर, आप चंद मिनट बैठिए, मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल लेनी थी तो यहाँ आना पड़ा। बस अभी चलते हैं, तब तक चाय का एक कप एंजॉय कर लें। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक फ़ाइल थामे आ गए और बिला तकल्लुफ़ मेरे से पास सोफ़े पर बैठ गए। आपने देख लिया मेरा घर कितना सूना सूना और ख़ाली है। क्या आपकी बेगम और बच्चे कहीं गए हुए हैं? बेगम वफ़ात पा चुकी हैं। एक बेटा है, मैंने बहावलपुर के एक बहुत आला तालीमी इदारे में दाखिल करवा दिया है। एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं तन्हा ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हारे हालात भी मुझे साबिर साहब की ज़बानी मालूम हो चुके हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे यकदम शौक़ लगा, क्योंकि वो मेरे वालिद के बराबर थे। मैं सोच भी ना सकती थी कि अचानक ऐसी बात कह देंगे। मैं तो एहतराम के मारे उनकी जानिब नज़र उठा कर भी ना देखती थी। मैं 19 बरस की थी और वो 40 से 2-3 साल ऊपर ही होंगे। इस वक्त कुछ ज़्यादा कहना मुनासिब ना लगा कि मैं उनके घर पर थी और अकेली थी। बेशक मुलाजिम मौजूद थे, ताहम ऐसी सूरत हाल में दानिशमंदी का तकाजा यही था कि उनसे एहतराम के रिश्ते का एहसास कायम रखा जाए। सर, इस मामले पर वालदा के बगैर बात तय नहीं कर सकती। मैं उनसे मशवरा करके आपको जवाब दूंगी। बोले, ठीक है। उनसे शादी किसी सूरत मुझे मंजूर न थी, सो अगले दिन डाक से इस्तीफ़ा अरसाल कर दिया। यूँ ये मुलाजमत छूट गई। सोचती थी अगर साबिर साहब का हवाला दरमियान में ना होता, मुमकिन था कि अशरफ साहब कोई और बात कर जाते। मैंने वालदा को बता दिया कि बॉस मुझसे शादी के आरज़ूमंद हो गए हैं। मैंने उन्हें अपने वालिद की तरह एक शफीक हस्ती समझा था। अब उनका सामना करना महाल था। ठीक है बेटी, मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम हमारी खातिर खुद को कुर्बान कर दो। अगर साबिर साहब ने पूछा, मैं खुद ही उनको आगाह कर दूंगी कि तुमने क्यों ये मुलाजमत छोड़ दी है। अम्मा के इस जवाब से मुझको ढारस मिली। उन्होंने कहा, अल्लाह मालिक है, रिस्क कहीं और से मिल जाएगा। एक सहेली ने तस्करा किया। उसने बताया कि मेरी वालदा के एक अजीज़ को अपने बच्चों के लिए लेडी ट्यूटर दरकार है। पैसे वाले लोग हैं, माकूल मुआवजा अदा करेंगे। फिर इनके घर जाकर 3 घंटे कम अज़ कम ट्यूशन देनी होगी और आमदोरफ्त का बंदोबस्त भी खुद करना होगा। वो आने जाने का किराया अलबत्ता दे देंगे। मैं ये ट्यूशन करने पर तैयार हूँ कि कुछ ना होने से कुछ हाथ आना बेहतर है, क्योंकि वालदा और छोटी बहन तो घर चलाने लायक नहीं है और मैंने नौकरी छोड़ दी है। समीना अगले रोज़ मुझे अपने रिश्ते के मामू के घर ले गई। वो अच्छी ट्यूशन दे रहे थे। शाम के वक्त पढ़ाने जाना था।
क्योंकि सुबह के वक्त बच्चे स्कूल जाते थे। मैंने मंजूर कर लिया जहां उनका घर था वहां नज़दीक बस स्टॉप था। इस सहूलत को गनीमत जाना कि फ़िलहाल आमदनी का एक ज़रिया निकल आया था। खातूने खाना से बातचीत तय हो गई और अगले दिन से मैं ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी। एक रोज़ ट्यूशन देकर घर वापस लौट रही थी कि मुझको अपने मोहल्ले का नौजवान आतिफ नज़र आ गया। वो मोटरसाइकिल पर था और मैं बस के इंतज़ार में खड़ी थी। वो अपने दफ्तर से गालबन घर जा रहा था। ये मगरिब का वक्त था। आतिफ ने मुझे देखा तो मोटरसाइकिल करीब रोकी और पूछा कि क्या घर जाने को यहाँ खड़ी हो। हाँ, मैंने जवाब दिया। आज इस तरफ कुछ हंगामा हो गया है, शायद बसों की हड़ताल हो गई है। तुम कब तक खड़ी रहोगी? अंधेरा होने लगा है, मेरे साथ चलो। आतिफ हमारे मोहल्ले का एक शरीफ लड़का था और मेरी माँ की उसकी वालदा से दोस्ती भी थी, लिहाजा मैंने उसके साथ घर जाने को बेहतर जाना और उसकी मोटर बाइक पर बैठ गई। उसने मुझे घर के पास उतार दिया। मैंने अम्मी को बता दिया कि इस तरह मामला हुआ है। वालदा ने कहा, बेटी कुछ दिन पहले ही उसकी माँ ने आतिफ के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अभी मैं सोच विचार में थी कि तुमने ये बात बता दी है। चलो तो फिर ये भी बता दो कि अगर मैं आतिफ की माँ को तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ तो तुम्हें एतराज़ तो ना होगा। मुझे आतिफ अच्छा लगा था, लिहाजा माँ से कहा कि नहीं माँ, मुझको आपकी किसी पसंद पर एतराज़ नहीं होगा। आप जो मुनासिब समझती हैं फ़ैसला कर लें, लेकिन ये सोच लें जब तक चिराग भाई की रिहाई जेल से नहीं हो जाती मैं इस घर से किसी और घर नहीं जा सकती। वो ये मोहलत देने को राज़ी हैं क्योंकि आतिफ की अभी चंद माह कबल ही नौकरी लगी है। शादी की तैयारी के लिए उनको भी 1 साल चाहिए। वालदा की इस बात से मेरे दिल को सुकून नसीब हुआ। 2 दिन बाद ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी कि आतिफ आ गया। कहा कि ये सुनसान सा इलाका है, तुमको सड़क तक आते 10 मिनट लग जाते हैं। बस के इंतज़ार में खड़ी रहोगी तो रात हो जाएगी। यही सोचकर तुमको लेने आ गया हूँ। वालदा मुझे रिश्ते का बता चुकी थी। मैं समझ गई कि इसमें आतिफ की भी मर्जी है, इसीलिए लेने आ गया है। अंधेरा बढ़ रहा था, सर्दियों के दिन थे। मैंने आफियत जानी कि मोटर बाइक पर बैठ कोठी से मेन सड़क तक चंद मिनट का सुनसान रास्ता पैदल तय करना मुझे खलता था, क्योंकि उधर दरख्त और झाड़ियाँ भी थी। अम्मी तुमको बहू बनाने का इरादा रखती हैं। मुझे ये बात बताई तो सोचा कि क्यों ना मैं रोज़ लेने आ जाऊँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो ठीक है। आतिफ क्योंकि मुझे भी बाद मगरिब ये चंद मिनट का रास्ता तय करना खौफज़दा कर देता है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि एक गाड़ी हमारे सामने से आती दिखाई दी, जिसकी लाइट्स हम दोनों पर पड़ी तो आतिफ ने मोटरसाइकिल दाएं तरफ कर ली। तेज़ रोशनी की वजह से बस इसी कदर देख सकी कि गाड़ी इसी घर की थी जिस घर में मैं ट्यूशन देने जाती थी। कौन चला रहा था ये नहीं देख पाई। गाड़ी चश्मे ज़दन में हमारे पास से गुजर गई। आतिफ रोज़ मुझे मगरिब के वक्त लेने आने लगा। एक रोज़ अम्मा ने कहा, बेटी तुम्हारा भाई जेल से रिहा होकर आ रहा है, ख्याल से आतिफ की मोटर बाइक पर बैठा करो, ऐसा ना हो किसी दिन वो देख ले और कोई फसाद डाल दे। बेहतर ये है कि ट्यूशन छोड़ दो। छोड़ दूंगी अम्मा, मैंने कहा। भाई को घर आने तो दो, वो आते ही कमाने नहीं लगेगा। हम खाएंगे कहाँ से? क्या अपने घर का खर्चा भी अब आतिफ की अम्मी से मांगोगी? खुदा ना करे, कैसी बातें करती हो। मैंने तो वैसे ही कहा कि चिराग का मिजाज जानती हूँ। माँ का खदशा भी सही था कि चिराग इंसान नहीं जेल बद से हैवान बनकर आया था। अब तो नशा भी करने लगा था। वो ऐसा बेहिस बन गया था कि उसे घर वालों के दुख सुख से कोई सरोकार न रहा था। सुबह का घर से निकलता आधी रात को वापस आता। अम्मा ने तो सोचा था कि बेटा आ जाएगा तो सबसे पहले घर की बदहाली को महसूस करेगा और कमाने की तरफ ध्यान देगा, लेकिन जब चिराग ने घर की बदहाली की तरफ कोई ध्यान न दिया तो अम्मा की कमर झुक गई। मैं इसी तरह ट्यूशन पढ़ाने जाती रही। चिराग को इल्म ही ना हो सका कि घर का खर्चा कैसे चलता है। वो रात गए घर आता, कभी खाना खाता कभी ना खाता, अपने कमरे में जाकर सो जाता। एक रोज़ मैं पढ़ाने गई थी, बच्चे और माँ बाप घर पर न थे। बच्चों का चचा मौजूद था। मैं वापस जाने लगी तो आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। ज़रा देर को दम तो ले लो, दूर से आई हो, ऐसी भी क्या जल्दी है? बच्चे और भाभी आने ही वाले हैं। मैंने कहा रास्ता छोड़िए, मुझे उनका इंतज़ार नहीं करना। बड़ी शरीफ बनती हो। ये तो बताओ उस रोज़ सड़क किनारे अंधेरे में तुम किसके साथ मोटर बाइक पर थी? इस बात से आपका क्या सरोकार? तुम हमारे घर ट्यूशन पढ़ाने आती हो तो ये मामला हमसे ताल्लुक़ रखता है। क्या वो शख्स तुम्हारा भाई है जो लेने आता है? मैंने तंग आकर कह दिया कि वो मेरा मंगेतर है। क्या कोई एतराज़ है? हाँ है, ये मेरा ज़ाती मामला है। ये कहकर मैं तेज़ी से उनके घर से निकल पड़ी। अभी वापसी का वक्त नहीं हुआ था, तभी आतिफ मुझे लेने नहीं आया था।
मजबूरन पैदल बस स्टॉप की तरफ चल दी। सुनसान रास्ते पर तेजी से जा रही थी कि एक गाड़ी ने मेरा रास्ता काटा। मुझे अपने कदमों की रफ्तार को थामना पड़ गया। गाड़ी रुक गई और दो नौजवान उतरकर मेरी तरफ आगे बढ़े, जबकि एक कार में ही बैठा रहा। लिफ्ट ले लो, पैदल क्यों जा रही हो? उन्होंने कहा। मैं ऐरो गैरों से लिफ्ट नहीं लेती। बहुत खूब, हम ऐरे गैरे हैं। अरे हमको अपना ही समझो। समझ गई कि ये बदमाश मुझको अकेली देखकर तंग कर रहे हैं। मैं कुछ खौफजदा हो गई। या अल्लाह मदद करना, यही सोच ही रही थी कि एक मोटरसाइकिल करीब आकर रुकी। ये आतिफ था। जान में जान आ गई और मैं दौड़कर बाइक पर बैठ गई। खुदा का शुक्र है आतिफ तुम आ गए। ये लोग मुझको अकेली देखकर तंग कर रहे थे। जो ही उसने बाइक स्टार्ट की, गाड़ी से एक और शख्स भी निकल आया था। दौड़कर वो सामने आ गया। आतिफ ने बमुश्किल बाइक को कंट्रोल किया, वरना शायद हम दोनों गिर पड़ते। गाड़ी से जो तीसरा शख्स निकला वो मुझे देखकर और मैं उसको देखकर शशिद रह गए, क्योंकि वो मेरा भाई चिराग था। मेरे माँ बाप की हसरत का नतीजा में हमारे दुखों का सहारा। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।